Good morning, my dear student. So today we'll learn mathematics subject. Today we'll continue our chapter number 5, multiplication. Okay. So in multiplication today I will teach you table 6 to 10. Okay. 1 to 5 table already आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीख ही आए होंगे. सेकंड स्टैंडर्ड में भी आगे हमने देखा था वो 1 to 5 टेबल आपका आ गया. ओके. सो अभी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन चैप्टर है उसमें हमें 6 to 10 वन टाइम रिपीट करना है. So you also have to repeat the table after me. First I will speak, then you have to repeat the table. 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 sixes are 36, 6 sevens are 42, 6 eights are 48, 6 nines are 54, 6 tens are 60. Okay. Now table of 7. See here. 7 ones are 7, 7 twos are 40, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 sixes are 42, 7 sevens are 49, 7 eights are 56, 7 nines are 63, 7 tens are 70. Now table of 8. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 sixes are 48, 8 sevens are 56, 8 eights are 64, 8 nines are 72, 8 tens are 80. Now table of 9. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 9 sixes are 54, 9 sevens are 63, 9 eights are 72, 9 nines are 81, 9 tens are 90. Now table of 10. Okay, table of 10. This is very easy table. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 sixes are 60, 10 sevens are 70, 10 eights are 80, 10 nines are 90, 10 tens are 100. Okay, so this is the table of 6 to 10. Okay, 6 to 10 नंबर के टेबल हमने अभी देखे. अब you have to remember this 6 to 10 table. Okay, and you have to write one table 5 times. Okay, 6 का टेबल 5 टाइम नोट में लिखना है, 7 का टेबल 5 टाइम, 8 का टेबल 5 टाइम, 9 का टेबल 5 टाइम and 10 का टेबल 5 टाइम. So one table you have to write 5 times in your maths notebook. Okay, और डेली आप ये टेबल को रिवीजन उसका करते रहोगे. जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप एक बार पूरे दिन में 1 या 2 बार तो टेबल अपने मम्मा पापा या ब्रदर सिस्टर के सामने ओरली बोलोगे. ओके, पहले 6 का टेबल ले लो, 2-3 दिन तक 6 का टेबल रिवाइज करो, देन 7, ऐसे करके 6 to 10 टेबल आपको रिमाइंड हर रोज ही उसको ओरली भी बोलना है. Now page number 130. See here, exercise is given, exercise 5.2. Okay, so this whole exercise is regarding the table only. Okay, 1 to 10 table. So question number 1, after learning the multiplication table, fill in the blanks. Okay, so 1 to 10 टेबल जिसको अच्छे तरीके से याद है वो ये सारे ब्लैंक्स तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं. सो हियर आपको क्या करना है, सिर्फ टेबल पूरा देख के उसका सिर्फ आंसर यहाँ लिखना है. सी हियर 3 5s are 15, 7 8s are 56, 8 4s are 32, 9 7s are 63, 10 8s are 80, 4 9s are 36. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेबल है ओके जिसमें जो टेबल है वो पूरा आपको बोल के 3 5s क्या नंबर आएगा वो आपको लिखना है. सो दिस 7 to 18 नंबर यू हैव टू राइट बाय योर ओन सेल्फ. ओके, क्योंकि आपको टेबल याद करना ही होगा. सो टेबल याद कर लो पहले, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करनी है. नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 2.
multiply and write the answer in the correct place. Okay, so this is the format of multiplication sum. ये जो symbol है मैंने सिखाया था multiplication का है. Now one digit number is given here, ones and tens. Okay, आपको 2 place तो लिखनी है क्योंकि जो आंसर आएगा वो आपका 2 डिजिट होगा. सो 1 प्लेस पे हम 2 डिजिट नहीं लिख सकते. सो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है. Now here 7 and 4 2 numbers are given. Okay, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर आप 7 4 करोगे तो भी सेम आंसर, 4 7 करोगे तो भी सेम आंसर. ओके, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता नहीं है. सो जो नंबर का टेबल आपको इजी लगता है, लाइक 7 का अगर आपको इजी लगता है तो 7 4 करना है, अगर 4 का टेबल इजी लगता है तो 4 7 बोथ दी आंसर आर सेम. 4 7 28, 7 4 28. सो आंसर इज 28. नाउ 28 जो है वो 2 डिजिट नंबर है. सो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, कोई 28 यहाँ पे लिख देंगे नहीं. ओके, सो 8 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. नाउ सेकेंड नंबर 5 5 25. ओके, 5 5 25, 5 5 25. Now see here third number 9 6 54, 6 9 54. ओके, दोनों इसमें ऑर्डर मैटर करेगा नहीं. जो टेबल आपको इजी लगता है वो फाइंड आप कर सकते हो. Now see here again 8 6 48, 6 8 48. Now 6 4 ओके, सो 4 का टेबल बोलना है. 4 6 24, 6 4 24. Now 3 9 27, 9 3 also 27. Now 4 3 12, 3 4 12. लास्ट नंबर 7 8 42, 6 7 42. ओके, सो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन के सम अपने टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक में लिखना है. नाउ सी हियर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज गिवन. प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी मिस्टेक होगी नहीं. फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टीज क्या दी है हमें, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 द आंसर इज 0. ये आपको याद रखना है कि आप कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 0 ही आएगा. भले ही कितना भी बिग नंबर हो, स्मॉल नंबर, बट आपको याद रखना है कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो द आंसर विल बी दी 0 ओनली. ओके, now second number when we multiply any number by 1 the product is the number itself. okay, यानी अगर आप कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो सो आपका आंसर क्या होगा, वही का वही नंबर. सी हियर फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, 4 1 सो नंबर क्या आएगा आपका आंसर, वो वही का वही नंबर. सो 4 का 4 ही आएगा. सी हियर 7 1 7 है ना, जो 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर इज 7. नाउ 51 1 51. ओके, 51 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 52. ओके, सो जो नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर सेम वही का वही नंबर आएगा. ओके, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी order of number. 2 numbers can be multiplied in any order, their product is always the same. यानी कि अगर ऑर्डर ऑफ नंबर, यानी मैंने आपको सम में भी सिखाया कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता नहीं है. जैसे कि 3 + 3. ओके, सो 3 3 2 टाइम है, सो हम क्या करेंगे 2 3 6. ओके, अब 2 3 भी 6 है एंड 3 2 भी 6. सो दोनों अगर आप पहले 2 को लिखते हो 3 को लिखते हो तो भी आपका आंसर तो सेम ही रहेगा. नाउ सी हियर 3 2 इट इज़ ऑल्सो सेम आंसर. ओके, 2 3 6, 3 2 6. यहाँ पे 3 पीछे है, यहाँ पे हमने आगे कर दिया बट आंसर इज सेम. सो अगर इसमें जो ऑर्डर है वो आप चेंज करते हो फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा. नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन हियर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर बाय 10 and 100. ओके, यानी कि कोई भी 1 डिजिट नंबर को आप 10 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा. सो सी यहाँ पे पूरा टेबल ही बना के आपको दिया है. हियर व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 by 10 वी गेट 10.
सो हियर 1 0 इज एडेड आफ्टर नंबर। सो आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो सो उसके पीछे एक 0 ऐड हो जाएगा। ओके, When we multiply 2 by 10 we get 20। देखो यहाँ पे 2 के पीछे एक 0 ऐड हो गया। वैसे अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 30, 4 को करते हो तो 40। ओके, सो 10 से जब मल्टीप्लाई करते हो 10 में कितने 0 होते हैं? 1। सो जो नंबर है उसके पीछे आपको 1 0 ऐड कर देना है। What happen when 2 is multiplied by 100? अब जैसे 10 में 1 0 है तो नंबर के पीछे हमने 1 0 ऐड किया। बट अगर 100 अगर आप देखते हो 1 and 2, सो 2 0 आपको जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसके पीछे 2 0 लगा देना है। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है कि 10 से हम मल्टीप्लाई करें तो 1 0 ऐड करना है वो नंबर के पीछे, एंड 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 0 ऐड करना है। सी हियर 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60, 10 7s are 70। सारे नंबर के पीछे 1 0 ऐड हो गया। सेम 100 में सभी जगह 2 0, 100 1s are 100, 100 2s are 200, 100 3s are 300, 100 4s are 400। ओके, सब में सेम नंबर के पीछे 100 है तो 2 0, 10 है तो 1 0 ऐड करना है। Now see here, exercise 5.3 is given here. This fill in the blanks is about the properties of multiplication. Okay, properties हमें याद करके fill in the blanks fill करनी है। So see here 9 1s are 9। Okay, 1 से मैंने आपको बताया कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो वही का वही नंबर आपका आंसर होगा। Now 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि हमने देखा कि 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन होता है आंसर आपका 0 ही आएगा। नाउ 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है 21 को, सो आंसर 21 ही आएगा। देन 14 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर इज 0। नाउ 0 इंटू 7 आंसर इज 0, 0 इंटू 15 आंसर इज 0, 1 इंटू 27। ओके, 27 को 1 से मल्टीप्लाई, सो आंसर आपका 27। नाउ 10 इंटू 0, सो आंसर इज 0 हियर। ओके, यहाँ पे आपको 0 लिखना है। 10 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका क्या आएगा? 0। यानी दो प्रॉपर्टीज आपको याद हो जानी चाहिए यहाँ पे कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही का वही नंबर आएगा, एंड 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, कोई नंबर यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द मिसिंग बॉक्सेस। ओके, सो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? थर्ड ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी। सी हियर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ओके, यानी कि 3 2 जा भी 6 होगा, 2 3 जा भी 6 होगा। ऑर्डर प्रॉपर्टी दी है कि आप ऑर्डर चेंज करते हो फिर भी आंसर आपका सेम रहेगा। नाउ 9 इंटू ब्लैंक इज इक्वल टू 8 इंटू 9, सो 9 आ गया तो यहाँ ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा? 8। नाउ 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। ओके, 7 और 5, सो यहाँ पे 5 आ गया, कौन सा नंबर बाकी बचा? 7। नाउ हियर ब्लैंक इंटू 6, 6 इंटू 4, सो यहाँ ब्लैंक में लिखना है 4। 3 इंटू 9 इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू 3, सो 3 आ गया, सो हमें ब्लैंक में लिखना है 9। Now 6 into 10 is equal to blank into 6. So 6 आ गया. So here in the blanks you have to write 10. Okay. Now page number 132 question number 3 is given. Fill in the missing numbers. Okay. So यहाँ पे काफ़ी में आंसर दे दिए, हमें बीच का नंबर फाइंड करना है या तो आंसर फाइंड करना है। जिसको प्रॉपर्टीज याद होगी उसको आंसर पता चल जाएगा। So see here 8 into blank is equal to 8. So 8 1s are 8. Now 17 into 0 is equal to 0. Now blank into 1 is equal to 5. So 5 into 1 is equal to 5. 10 into blank is equal to 10. So 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही का वही नंबर आएगा 1. Now 24 into 0 is equal to 0. 5 into 10, 5 10s are या 10 5s are 50. Now 3 into blank is equal to 30. तो
30 लाने के लिए 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ नंबर के पीछे 1 0 ऐड हुआ है, सो 10। नाउ 100 7s are 700, या तो आपको याद रखना है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर के पीछे 2 0 ऐड कर देना है। सेम हियर आंसर आपका 400 आया, सो यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 से। नाउ 9 10s are, ओके 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9 के पीछे हमें 1 0 ऐड कर देना है, ओके। So this whole the exercise you have to write in your textbook and in your notebook also.